Who was the first Agriculture and Food Supply Minister of India? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक टर्म है पार्ट परफॉर्मेंस। इसको आप हमको एग्जाम्पल के माध्यम से बता दीजिए। मुझे बताइए कि FIR क्या होता है। ICJ का चेयरपर्सन कौन है अभी? Come in. Good evening, sir. Good evening. Have your seat. Introduce yourself. Sir, myself Manish Kumar. I belong from Siwan district of Bihar. I did my BA LLB from Chanakya National Law University and Master of Law from Central University of South Bihar in 2021. Okay. Who was Chanakya? So Chanakya was the Prime Minister of Chandragupta Maurya. And why he was called Chanakya? Sir, I think his pet name. What was the name of his father? Sorry, sir. Did he have other names? Yes, sir. He has other name. Vishnugupta. Okay, Vishnugupta. What else? So right now I'm. He authored a book. Yes, sir. What is the name of the book? Arthashastra. And the author of the book is called? Arthashastra, sir, because Arthashastra is. So who is the writer of Arthashastra? Chanakya. Chanakya or Kautilya? Kautilya. Okay. So Kautilya is yet another name of Chanakya. Yes, sir. Okay. So why he was called Kautilya? Sorry, sir. I have a, Okay, Arthashastra is a book on which subject? sir, subject with related to the political affairs and foreign affairs of the government. Okay. So what kind of political structure it describes? But sir, what will be the duty of the any king or like government ruling in state? Also, what kind of duties he has described in that book? What should be the duties of a king? Like for doing a social justice or like to govern the society or social justice. Okay. In ancient times and also until pre-medieval times, Hindu society was having 8 different forms of marriages. Yes, sir. One of that form of marriage in a slightly modified form is still practiced in Bihar. And that is called Pakadua Sadi. So can you relate it to the one of the 8 different forms of marriage described in ancient times? So right now I'm unable to recall exact the form of marriage, but I can वो make. आपको पढ़ना भी है फैमिली लॉ में? जी सर, वो सर सोशियोलॉजी में भी पढ़ना था हम लोगों की एक फॉर्म ऑफ मैरिज क्या है। कौन कौन सी शादी थी? आर्ष विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, ब्रह्म मैरिज, गंधर्व विवाह, ब्रह्म मैरिज था, ठीक है, और असुरा मैरिज था, असुर मैरिज, राक्षस विवाह, या राक्षसा विवाह, और सॉरी अनेबल टू रिकॉल पिशाच विवाह। यस तो इसमें से पकड़ुआ विवाह किससे कॉरेस्पॉन्ड करता है? सर, राइट नाउ अनेबल टू रिकॉल कि सर किससे वो कनेक्ट करता है। आई थिंक सर आई कैन मेक अ गेस ऑन दिस कि सर आई थिंक ब्रह्मा मैरिज हो सकता है। नहीं सर। ओके, नहीं। अच्छा, ये बताएं कि whether anybody from Bihar born in Bihar became Chief Justice of India? यस सर, सॉरी सर I did. Any person who was born in Bihar became Chief Justice of India? No sir. Sukriti Singh has become a honorable the Justice of Supreme Court, but I think is my limited knowledge. No one became a Chief Justice of India. नहीं है, 2 लोग ऐसे हैं। Sorry. अच्छा, उनके बारे में आपको नहीं पता है? ठीक है। Anybody from Bihar became Deputy Prime Minister of India? Or anybody from Bihar who became Finance Minister of India? Yes sir, Mr. Yashwant Singh. Yashwant Sinha, ठीक है, Yashwant fine. Sinha. Anybody from Bihar who became the Labour Minister of India? Yes sir, one person. Sorry sir, I'm unable to recall his name. Who was the first Agriculture and Food Supply Minister of India? The person was from Bihar only. Okay, how many women MPs are there in the 18th Lok Sabha from Bihar? I think sir, 2 women from Bihar, one from Siwar and another from Siwan district. Okay, and what are their names? Sir, from Siwan, Vijayalakshmi Devi, and from Siwar, she is Lovely Anand. Okay, 2 ही हैं पक्का और नहीं है? Okay, how many women MLAs are there in the Vidhan Sabha? Sorry sir, I am not able to recall कि सर कितने हैं। बिहार में कोई विधान परिषद भी है? इज लेजिस्लेटिव काउंसिल इन बिहार? लेजिस्लेटिव काउंसिल में व्यूमेन है, बस नंबर ऑफ व्यूमेन पता नहीं कितने हैं। काउंसिल है ना? हाँ सर, काउंसिल है। ठीक है।
My last question. Who is the deputy chairperson of the Rajya Sabha? Sir, he is from Bihar, from the political party of JDU. Sir, I forget the name, his name. कोई बात नहीं, ठीक है. चलिए, आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो फैमिली लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कॉर्पोरेट लॉ. कॉर्पोरेट लॉ एंड कॉमर्शियल लॉ में कोई डिफरेंस होता है कि दोनों सेम चीज़ होती है? वेदर एनी डिफरेंस? बिकॉज मैं तो कॉमर्शियल लॉ सुना था. Yes, बिहार sir. में है कॉर्पोरेट लॉ, तो नहीं इस टर्म यूज है. सर, बिहार में कॉमर्शियल लॉ मेंशन्ड है सिलेबस में सर, बट आई डिड मिस्टेकली मेंशन हो कि सर. अच्छा चलिए, तो बताइए दीजिए क्या डिफरेंस है कॉर्पोरेट एंड कॉमर्शियल में. सॉरी सर, एग्जैक्ट डेफिनेशन सर, मतलब डेफिनेशन क्या कोई है? बात नहीं. सीपीसी का ऑर्डर 9 आपको पता है जी सर. क्या है? अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्ट. अब मान लीजिए प्लेंटिफ जब सूट फाइल होता है, जब डेट फिक्स होती है, प्लेंटिफ अपेयर नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या करेगा? सर, अगर प्लेंटिफ अपीयर नहीं होता है तो सर उस मामले में सर कोर्ट सूट को डिसमिस कर देगा. उसके अलावा वो नेक्स्ट डेट नहीं दे सकता? सर, नेक्स्ट डे दे सकता है अगर सर उसको प्लेंटिफ को बुलाया है, और अगर उस समय अगर कोर्ट के पास सारे पावर है कि उस सूट को डिसमिस कर दे, अगर सर, और उसमें फिर अगर नेक्स्ट डे दे सकता है उसको. जो आप बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं? हाँ सर, डिसमिसल का है इसमें सर, ग्राउंड डिसमिसल करें, नेक्स्ट डे देने का नहीं है? सर, नेक्स्ट डे भी दे सकता है, लेकिन सर अगर उस दिन पे अगर हियरिंग का डेट है, लास्ट डेट है, तो सर उसके बाद डिसमिस कर सकता है. अच्छा, ग्राउंड ऑफ विड्रॉल ऑफ सूट अंडर द सीपीसी क्या क्या है और किस ऑर्डर में है? सर, ग्राउंड सर, ये एग्जैक्ट सर मुझे ऑर्डर में याद नहीं आया कौन से ऑर्डर में है, बट सर ऐसे ग्राउंड ऑफ विड्रॉल ऑफ सूट है अगर सर रिप्रेजेंटेटिव सूट है, अगर ऑन बिहाफ ऑफ माइनर अगर कोई सूट फाइल किया गया है, तो ऑन द लीव ऑफ कोर्ट, बिफोर द परमिशन ऑफ द कोर्ट, सूट को विड्रॉन कर सकता है पार्टी. विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट सूट को लीव नहीं कर सकता, विद द परमिशन जरूरी है? सर, अगर रिप्रेजेंटेटिव सूट है और सूट ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर अगर फाइल किया गया है, तो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट उसको सर. और विदाउट परमिशन ऑफ सूट कैसे होगा? सर, अगर विदाउट परमिशन ऑफ सूट करता है तो सर उसको फिर नेक्स्ट टाइम और फिर उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे सूट फाइल नहीं कर सकता. सेम कॉज ऑफ एक्शन पे कोर्ट फाइल नहीं करता. हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू टर्म को डिफाइन किया गया है? जी सर, हिंदू डिफाइंड है. कहाँ पर? सर, हिंदू मैरिज एक्ट में सर डेफिनेशन है, हु विल बी अ हिंदू. डिफाइन किया गया है, ये कहा गया है कि हिंदू मैरिज एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? सर, एप्लीकेबल ऑन होम सर ऐसे डिफाइन किया गया कि किस पे एप्लीकेबल होगा हिंदू मैरिज एक्ट. तो हिंदू कहाँ डिफाइन सर किया? एग्जैक्ट हिंदू वर्ड सर डेफिनेशन में नहीं है. एग्जैक्ट नहीं है. तो हिंदू क्या होता है? अनकोडिफाइड लॉ में क्या हिंदू को डिफाइन किया गया है? बाय टू टाइप ऑफ लॉ, वन इज अनकोडिफाइड, अदर इज कोडिफाइड. So if codified law does not define the term Hindu, तो whether uncodified law defines the term Hindu? सर, अनकोडिफाइड सर तो ऐसा कहीं है कि सर कहीं नहीं है कि डिफाइन किया गया है हिंदू को, बट अगर हिंदू मैरिज एक्ट में सर ऐसा कहा गया है कि अगर उसके किसी दो पेरेंट्स हिंदू हैं तो उसका जो डिसेंडेंट होगा वो भी हिंदू होंगे, और उसमें से कोई एक पेरेंट्स हिंदू हैं वो हिंदू होंगे, और पेरेंट्स ब्रॉट इन हिंदू फैमिली तो वो हिंदू होंगे. बिहार के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो विवाह है वहाँ पे लोग जाते हैं और पैसा देते हैं और लड़की के साथ शादी कर लेते हैं. कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मेला टाइप का लगता है ऐसा. तो क्या इस टाइप की मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट में एक्सेप्टेड है? नहीं सर, इस तरह का सर मैरिज एक्सेप्टेबल नहीं है एज पर हिंदू मैरिज एक्ट, बिकॉज सर मैरिज विदाउट कंसिडरेशन होता है. अगर कोई जाके सर मैरिज पैसा दे के कोई लड़की शादी कर लेता है विदाउट हर कंसेंट. तो इस मैरिज को कहते क्या है? अगर जो टाइप्स ऑफ अनकोडिफाइड मैरिज, अनकोडिफाइड लॉ था उसमें इसको 8 टाइप की मैरिज बताई गई, तो ये किस टाइप की मैरिज है? सर एग्जैक्ट सर मुझे टर्म उसमें सर किस मैरिज में फॉल करेगा सर मुझे याद नहीं है. चलिए कोई बात नहीं. आप मेरे को एक टर्म बताइए कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक टर्म है पार्ट परफॉर्मेंस. इसको आप हमको एग्जाम्पल के माध्यम से बता दीजिए. सर, एक एग्जाम्पल पार्ट परफॉर्मेंस का सर ऐसे हो सकता है कि अगर पार्टी और ए और बी है, तो सर ए और बी ने सर ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट, ऐसा एक अगर पार्टी ए ने अगर किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया बी को, और वहाँ पे कोई अगर सर रिटन डॉक्यूमेंट्स है बट वो रजिस्टर्ड नहीं है, देन अगर फिर बी पार्टी ने अगर ये सर उसमें विलिंगनेस है कि उसको उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करेगा, बट और बी भी परफॉर्म करने के लिए विलिंगनेस है, लेकिन आफ्टर दैट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ए, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ए
और ए सर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र अगर सी को कर देता है, देन सर सी के पास ऐसा राइट रहेगा कि सर पार्ट परफॉर्मेंस पे उस प्रॉपर्टी का पोजीशन को होल्ड कर लेगा कि सर उसके पहले उसका सर एग्रीमेंट सी होल्ड कर लेगा कि बी होल्ड कर सर लेगा? बी कर लेगा सर विथ रिगार्ड टू दी सर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ। ओके, चलिए ये बात तो आपकी सही है। एक आप टर्म बताइए, कस्टम एंड यूजेस, दो शब्द हमको मिलते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में। ये कस्टम और यूजेस में अंतर क्या होता है, क्या है ये? सर कस्टम को सर कहा जाता है, जैसे डिफाइन किया जाता है, कस्टम इज ए ट्विलाइट ऑफ यूसेज सर। तो सर कस्टम होता है कि अगर कहीं कस्टम अगर फॉलो हो रहा है तो उस पर सर जो कोडिफाइड हिंदू लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। आपने यहाँ पर लिखा है कि एज ए गेस्ट फैकल्टी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जी सर टीचिंग भी कर रहे थे, तो कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ाए? सर मैं वहाँ पे सर एक सेमेस्टर फैमिली लॉ पढ़ाया था और इन्वायरमेंटल लॉ पढ़ाया था फाइनल। एक सेमेस्टर फैमिली लॉ और एक सेमेस्टर इन्वायरमेंटल लॉ। चलिए एक फैक्ट, मैं आपको एक कहानी देता हूँ और आप हमें बताइए कि इस पर क्या होगा। मान लीजिए ए है और उसकी शादी एक महिला से हो गई और महिला से उसके 2 बच्चे भी हो गए। जी सर। और कुछ समय बाद महिला को ऐसा लगता है कि उसका पति उससे प्यार नहीं करता और वो पति का प्यार पाने के लिए किसी बाबा के पास चली जाती है और वो बाबा उसको कुछ भस्म देता है और कहता है कि जाकर अपने पति को खिला दो। उसको खाने के बाद पति की तबीयत खराब हो जाती है और पति की सेवा जो है पत्नी ऐसे करती जैसे करना चाहिए, एकदम परफेक्ट। लेकिन जब पति इसी आधार पर पत्नी के खिलाफ एक याचिका फाइल कर देता है, पिटीशन, कि उसको डिवोर्स चाहिए, तो क्या उसे न्यायालय डिवोर्स देगा या नहीं? सर ऐसा सर अगर ग्राउंड सर देखा जाए सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में, तो ऐसा कोई सर ग्राउंड सिर्फ एडल्ट्री, क्रुएलिटी, ऑन डिजर्शन और ये किसी ग्राउंड में आ रहा है कि नहीं? सर एज पर फैक्ट सर जो है इस फैक्ट में सर कहा गया कि अगर कोई बाबा उसको भस्म दिए हैं और उससे उसका तबीयत खराब हो जाता है, बट सर पत्नी का इसमें सर कोई ऐसे इंटेंशन नहीं दिखता है। और सर एज पर माई नॉलेज और अकॉर्डिंग टू मी सर एक कोई ऑन द बेसिस इट कैन नॉट फॉल अंडर द क्रुएलिटी। टीचिंग द हिंदू लॉ, तो आपको ये पता होना चाहिए क्रुएलिटी में इंटेंशन इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन एंड मोटिव। सर क्रुएलिटी में सर इंटेंशन होता है कि सर क्रुएलिटी अगर क्रूअल एक्ट है, अगर मान लीजिए हार्म पहुंचाने का सर उसको। अगर किसी पत्नी को सिर्फ खुशी मिलती है कि पति उससे ऊपर खिसियाए, गुस्सा हो, उसको आनंद मिलता है, तो वो भी तो क्रुएलिटी माना कोर्ट ने। तब कैसे वो क्रुएलिटी मतलब कोई इंटेंशनली किसी को हर्ट करे। एनी एक्ट इज नॉट अ बिकम ऑफेंस विदाउट अ गिल्टी माइंड इज द क्रिमिनल लॉ प्रिंसिपल। जी सर। बट वेदर द क्रुएलिटी में ये चीज़ें आवश्यक हैं, नेसेसरी है, और इसको इंग्लिश और इंडियन लॉ में कोई कॉमन चीज़ें हैं? तो सर मैं इस पर सर एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ कि इसमें क्या होगा, बट सर मेरे अकॉर्डिंग इस पर डिवोर्स ग्रांट नहीं करेगा। ये जो मैं फैक्ट बताया, कोई लैंडमार्क जजमेंट भी था, उस जजमेंट का ये पार्ट है, ये फैक्ट है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि ये मेंटल क्रुएलिटी में आएगा कि नहीं आएगा। सर एक मेंटल क्रुएलिटी का सर बहुत पुराना केस है, दस्ताने वैसे दस्ताने, उसमें सर मेंटल क्रुएलिटी की डेफिनेशन आई थी, उसमें क्या मेंटल क्रुएलिटी होगा उसके बारे में बताया गया। ये तुम दस्ताने का नहीं है, कोई दूसरा केस है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू। मनीष जी सर। मुझे बताइए कि एफआईआर क्या होता है? सर एफआईआर इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, but in section 154 of the CRPC, it is a report of cognizable offense to the police officer. Where it is written that it is only for cognizable offense and it is under section 154 CRPC only? Sir, it has been written in only with the information with regard to the cognizable offense. Where it is written? Sir, section 154. 154 mentions the term FIR? So no, sir. So from where did you get this term? Sir, it has been became a judicial interpretation की first information report. Which case judicially interprets that section 154 talks about first information report? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि सर कौन से केस में ऐसा हुआ था, बट सर इट यूजुअली सेड कि ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। It is usually seen that FIR is only for cognizable जी सर। reports. What is the meaning of first information report? Again, what is the meaning? How do you interpret this term FIR? First information report which given to the police officer. Information given first in the point of time. जी सर, first. Does it talk about cognizable information or non-cognizable information? No sir. It only talks about information. Information. So it can be either 154 or 155, isn't it? Or it is only 154? Sir, both हो सकते हैं. Both हो सकते हैं. जी सर. But you are saying that it is somewhere written in judicial precedents.
Sorry, sir. So you believe that it could be both. Yes, sir. It could be a both, sir. FIR non-cognizable केस के लिए भी हो सकता So what is the concept of zero FIR in this regards? Sir, zero FIR with regard to the, sir, with irrespective of the jurisdiction of the police station, first information report be given to the police officer. And now it has been statutory recognition in the Bharatiya Nagarik Surakshya Sanhita. Okay. Then tell me about what do you mean by vitiating the proceedings in CRPC? So section 460 of the CRPC talking about the vitiating of the vitiating the process of, sir, What do you mean by that? Vitiating the proceedings? vitiating the proceedings means without having a jurisdiction of the case, if magistrate tried the case, then the proceeding would be void. Without having jurisdiction? Without having, so various ground has been mentioned, section 460 and 461. In 460, the proceeding will not be void, but in 461, the mention it will be void. That in section 461, in which if the magistrate taking a cognizance wrongly in which has been given in section 190 subsection 1 clause C, then the proceeding will be void. Will be void. What does that mean? Will be void? Means, sir, proceeding will null and void, sir. So कोई मतलब And it नहीं. will be tried de novo. Yes, sir. Trial de novo. It will be tried de novo. You said that you have taught family law. जी sir. Okay. So you know about Hindu Marriage Act जी sir. and also Muslim Marriage Act. जी sir. Both the subjects you have taught? Yes, sir. Muslim marriage and Hindu marriage. Muslim and Hindu both? Yeah, both, sir. All right. So tell me the nature of marriage in Hindu law and nature of marriage in Muslim law. Sir, nature of the Hindu marriage is talking, specifically talking it is sacrosanct or sacrament. But in Muslim marriage, it not can be. It is basically a contract in a various judgment and various justice have said it is not it is not a sacrament, but it is a contractual obligation. Hindu Marriage Act is a contractual obligation. No, sir. Muslim marriage. Muslim, it is not a sacrament. It is not a sacrament. It called a contractual obligation of both the party. Okay. So it is governed by Indian Contract Act because it is a contractual obligation? No, sir. It is not governed by the Indian Contract Act. Then why are we saying that a contract? Because, sir, sir, in a Muslim law there is a acceptance of dower. Without having acceptance of dower. No, there is an offer, there is an acceptance. ijab कबूल हो गया. एक ने ऑफर किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, उसने भी ऑफर किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया. तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से गवर्न क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज सर एक गवर्न इसलिए नहीं है, सर जो मुस्लिम मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज है, इट इज़ अ पर्सनल लॉ ऑफ द मुस्लिम. सो जो स्टैट्यूटरी लॉ है और जो सब्सटेंटिव लॉ है विल नॉट एप्लीकेबल ऑन द पर्सनल लॉ. सो देयर कांट बी एनी स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. नो सर, इट इज नॉट स्टैट्यूटरी. पर यहाँ भी तो दो पार्टीज एक दूसरे को ऑफर एक्सेप्टेंस कर रही हैं, तो डेफिनेशंस तो प्रॉपर हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी यही लिखा है. जी सर. और एक्सेप्टेंस भी हो गई, डावर भी आ गया, कंसिडरेशन भी हो गई. सो व्हाट डू यू थिंक व्हाई इट इज नॉट controlled by or regulated by Indian Contract Act? The breach of it should be redressed by compensation or specific performance. कल अगर वो मना कर दे कि मैं नहीं शादी मान रहा हूँ तो स्पेसिफिक परफॉर्म करवा लो एसआरए में. नहीं हो सकता सर? एसआरए में सर परफॉर्मेंस नहीं हो सकता क्योंकि सर आई हैव ऑलरेडी सेड कि सर जो भी प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ है विल नॉट एप्लीकेबल टू द पर्सनल लॉ. और सर जो हिंदू मुस्लिम मैरिज गवर्न होता है वो पर्सनल लॉ ऑफ द पर्सनल लॉ पे प्रोसीजर एप्लीकेबल नहीं है. So tomorrow if a Muslim needs some right to be instilled by the court, where will it go? Sir, it will go through the section 125. Okay, what are the procedures followed in personal laws? सर प्रोसीजर जो सर इसमें सर सब्सटेंटिव लॉ है सर वो एप्लीकेबल नहीं होगा. और सर जो मुस्लिम मैरिजेज का जो कंसेप्ट है और सर उसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है. Okay, one last question. What is polluter pay principle? Sir, in a polluter pay principle, the liability will be the polluter who pollute our environment. And who is a polluter in this regards? Sir, in this regard, the various company or those who emitting the noxious substance. How many types of pollutions are there? Sir, various kind of pollution are there, like air pollution, noise pollution. And what is the role of Pollution Control Board? Sir, role of Pollution Control Board with regard to the CPCB or SPCB, like State Pollution Control Board, it is a body which is constituted by the water through the Water Act. Sir, उसका जो role होता है बहुत limited है. They are only giving like सर वो ऑर्डर देते हैं कि कैसे कंपनी एस्टैब्लिश होगी. उन रिकॉग्निशन देते हैं कि कंपनी कब एस्टैब्लिश होगी नहीं होगी. It's an advisory body or it can take actions too?
Sir, it is the advisory body. Only advisor. The advisory body. Thank you so much. मनीष, अगर कोई भारतीय शिप है और उसमें यात्रा करने वाला कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक के खिलाफ अपराध करता है, तो उसमें जुरिस्डिक्शन किसका होगा? वो व्यक्ति जिस देश का नागरिक है उस देश की सरकार का जुरिस्डिक्शन होगा उस पर, या चूंकि हमारे देश के नागरिक को उसने हर्ट किया है इसलिए हमारा क्षेत्राधिकार में आएगा वो? सर, इंडिया के क्षेत्राधिकार में आएगा। किसके? इंडिया के क्षेत्राधिकार में आएगा सर। इंडिया का लाइक उस पर आईपीसी एप्लीकेबल होगा अगर फ्लोटिंग प्रिंसिपल देखा जाए उसके अकॉर्डिंग। और मान लीजिए वो शिप इंडियन नहीं है, शिप फॉरेन शिप है, जी सर। नागरिक इंडियन है, और वो एक व्यक्ति जिसने हर्ट किया है हमारे नागरिक को वो किसी दूसरे देश का नागरिक है, उस हालत में जुरिस्डिक्शन किसका होगा? सर, अगर इंडियन नागरिक को उसने हर्ट किया है और इंडियन नागरिक पे कोई ऐसा एक्ट कमिट किया है जो विच ऑफेंसेस कम्स अंडर द आईपीसी और बीएनएस, तो सर बीएनएस उस पर एप्लीकेबल हो। ठीक है। अगर मान लीजिए वो व्यक्ति जो हमारा नागरिक है वो कनाडा में है और उसको किसी व्यक्ति ने हर्ट किया है, तो जुरिस्डिक्शन किसका होगा? सर, अगर कनाडा में सर अगर इंडियन को सर अगर किया है तो फिर सर इंडिया का लॉ उसको सर इंडिया में बुला के उस एक्यूज को फिर सर अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ उसका सर इंडिया का प्रोसीजर उस पर एप्लीकेबल होगा। वो व्यक्ति स्वेच्छा से क्यों आएगा? जब आप उसको दंडित होने के लिए बुलाएंगे तो आएगा। सर उसके लिए सर अपने पास सर इंटरनेशनल लॉ में ट्रीटी अगर सर हुई होगी तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, तो उसको एक्स्ट्राडिट करके बुलाया जाएगा। और वो सरकार अगर मना कर दे कि एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे तो सर फिर अगर सर तो फिर उसको नहीं सर बुला पाएंगे। अगर नहीं तो फिर अगर उस पर सर मतलब एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को वायलेट कर दे अगर सरकार, तो हमारे पास ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए क्या मैकेनिज्म है? सर इसको सर फिर इट विल फॉल अंडर द प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के केस में फॉल होगा। कहाँ जा सकते हैं हम? सर इसके लिए सर हम लोग फिर प्राइवेट आईसीजे में जा सकते हैं? सर आईसीजे में नहीं सर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। क्या बांग्लादेश के साथ हमारा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है? सर मैं इस पर मेरा लिमिटेड नॉलेज है सर, है कि नहीं जानकारी नहीं। अगर बांग्लादेश की सरकार वहाँ के जुडिशल प्रोसेस द्वारा ये रेजोल्यूशन पास दे कि शेख हसीना को हमें सुपुर्द करिए, और हमारी सरकार अगर मना कर दे कि नहीं सुपुर्द करेंगे, तो बांग्लादेश की सरकार कहाँ जा सकती है अपने ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए? सर वो आईसीजे में जा सकती है एज ए, क्यों सर आईसीजे मिक्स हो जाएगी क्योंकि सर वहाँ पे स्टेट जा रहा है। तो आईसीजे का चेयरपर्सन कौन है अभी? प्रेसिडेंट? सॉरी सर इसमें याद नहीं है। क्या वो भारतीय नागरिक हैं? सॉरी सर। कोई बात नहीं। ठीक है मनीष, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। क्या लग रहा है, कैसा रहा? सर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया सर। कहाँ गड़बड़ पकड़ में आया? सर थोड़ा फैमिली लॉ पे सर क्लैरिटी नहीं थी। ठीक है। और सर जो लास्ट में सर आपने क्वेश्चन पूछा सर, थोड़ा उसमें मैं ब्लंडर कर दिया। वो तो पूछेंगे नहीं पूछेंगे कोई जरूरी नहीं, ऐसे ही मैंने सोचा कि इंटरनेशनल लॉ पे थोड़ा सा पूछते हैं। जी सर। आजकल वो पन्नू वन्नू का कंट्रोवर्सी चल रहा है, जी सर। तो जुडिशियल माइंड जिसका होगा उसका ध्यान जाएगा कि भाई जी सर। पन्नू को एक्स्ट्राडाइट हम करा सकते हैं कि नहीं। कोई भी अगर मान लीजिए कोई खालिस्तान मूवमेंट अगर चला रहा है तो वो भारत की सॉवरेंटी के अगेंस्ट है कि नहीं है, पहले तो ये डिटरमिन करने की बात है। और एक बार डिटर्मिनेशन हो जाता है कि इट इज़ एक्ट अगेंस्ट सॉवरेंटी ऑफ इंडिया, तो दैट बिकम्स क्राइम। तो फिर एक्स्ट्राडिशन का मामला बनेगा कि नहीं बनेगा ये बहरहाल। तो अभी आईसीजे के प्रेसिडेंट एक इंडियन बने हैं, बहुत दिनों से वो जज थे वहाँ पर। एनके सिंह? नहीं, एनके सिंह तो बहुत पहले सर। दलबीर भंडारी सर। हाँ, तो ये सब ऐसी ना जानकारी होनी चाहिए। बिहार से कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, 2 बार बने हैं, उनके बारे में पता है? सर मैं नाम सर पता है, मैं भूल गया एक्चुअली सर उस समय। हाँ, ये सब अपडेट थोड़ा सा ले लीजिएगा, हो सकता है पूछे, जरूरी तो नहीं है लेकिन जानकारी रहनी चाहिए। अभी हाई कोर्ट के जस्टिस का नाम तो आपने बता ही दिया। कितने जजेज हैं पटना हाई कोर्ट में? सॉरी सर, आई थिंक 54 हैं सर, मुझे याद। सैंक्शन स्ट्रेंथ है 53। सैंक्शन 53। फिलहाल कितने हैं? सारी सीट तो भरी नहीं हुई। सारी सेक्टर भरी नहीं है सर। नहीं सर पता है कितने। मतलब ये सब काम कर लीजिएगा, पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पे जाके वो सब थोड़ा विजिट कर लीजिएगा। देखिए आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, सब लोगों की राय है कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा इंटरव्यू में। 1-2 चीज़ों पे सिर्फ आपको काम करना पड़ेगा, वो नॉलेज वाले से ज़्यादा प्रेजेंटेशन वाले में है। जी सर। एक तो ड्रेस सेंस आपका बहुत अच्छा है, बैठने की भंगिमा में थोड़ा सा सुधार आप देखिए, तो कुर्सी में और पीछे जाके बैठने की गुंजाइश है, मतलब थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेट हो जाए। कुर्सी पीछे नहीं, आप पीछे। अच्छा सर ऐसा। हाँ, बॉडी थोड़ा स्ट्रेट हो जाए, ऐसे गुंजाइश। हाँ सर, ऐसे बैठिए, अच्छा रहेगा। शेव कर लीजिएगा। जी सर। और
चेहरे पे अननेसेसरली आप एक कंसर्न की फीलिंग आपके चेहरे पे दिख रही है जिसका कोई रीज़न नहीं है, बिकॉज यू आर आंसरिंग वेरी वेल, योर नॉलेज इज़ गुड, आर्टिकुलेशन इज ऑल्सो गुड। आप थोड़ा लाउड बोलेंगे तो कॉन्फिडेंस झलकेगा। अभी सबड्यूड लग रहा है कॉन्फिडेंस आपका, सिर्फ इसलिए कि आप थोड़ा सा लो पिच में बात कर रहे हैं। स्पीक अ लिटिल लाउडर, मे बी 10-15% लाउडर, एंड ट्राई टू हैव अ स्माइलिंग फेशियल एक्सप्रेशन। उससे भी लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट लेवल है। जी सर। और अननेसेसरली अपने अंदर क्यों एंजाइटी लेके बैठे हैं? आप आप एक टारगेट रखिए कि आई एम गोइंग टू टॉक टू सीनियर पर्सन फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशरी एंड आई एम गोइंग टू मेक इट फन, लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस फॉर योर सेल्फ। बस इतना सोच के जाइए, डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट्स। रिजल्ट के बारे में सोचने से टेंशन होता है। वो सर वही सर था कि इंटरव्यू कहीं गड़बड़ ना हो जाए सर। एक सर बैक नहीं ऑफ नहीं, वो माइंड छोड़ चलते दो रहता है। दिमाग से, वो फिर ये रहेगा फिर आप सर वही वो सर। जब ठीक तक- है, इसी चीज को रिलैक्स करना, यही इंटरव्यू है। जब तक आप रिजल्ट के प्रति चिंतित रहेंगे तब तक टेंशन अपने आप में बनता रहेगा। तो बंद कर दिए। माँ सर एक फलेस बिहार में और सर वो भी रूल है ना 35% वाला, तो सर एक बैक ऑफ माइंड सर वो चलते ही तो रहता है। 35 है तो उसके बीच में आप निकाले हैं ना, तो 35 तो ऑलरेडी रहेगा, उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? तो 35 को आप पॉजिटिव अप्रोच में लीजिए ना, निगेटिव में क्यों ले रहे हैं? भाई ऑलरेडी 35 है, तभी तो आप निकले हैं। सर नहीं, वो इंटरव्यू में 35 से कम देते हैं तो फिर सर वहाँ आपको 35 से कम नहीं मिलने वाला है। आप तो टॉप एक्लियन में जाने आप वाले आराम हैं। से इंटरव्यू में आपको अच्छा नंबर आपको मिलेगा, 50 से 55 नंबर मिलेगा। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। तो इसलिए आप स्माइलिंग फेस से। स्माइलिंग फेस से जाइए। स्माइलिंग से हो सकता है 5 और बढ़ जाए, 60 हो जाए। सर एक और मेरा सर क्वेश्चन था सर, ड्रेस से सही है, मैं इसी को सर बहुत पहन सुंदर रहा है, हूँ। perfect. बहुत सुंदर है। सर टाई वगैरह सर बहुत लोग बोल रहे थे परफेक्ट कि है। देखिए, टाई अगर मरून वगैरह थोड़ा पहनेंगे, थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग का जमाना फैशन है, लेकिन ये भी ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ज़्यादा वो नहीं देखेंगे। बस रिलैक्स होके आप चलिए जाइए वहाँ। टाइडी ये होना टेंशन चाहिए, मत लो। कलर भी आपका अच्छा है, टाइडी भी है, तो बस ठीक है। ठीक है, 15 मिनट में आपकी पर्सनालिटी को एग्जामिन करके आपको नंबर चेहरे दे पे देंगे। शिकन मत रखना बस। सर एक और सर मतलब एक्सप्रेशन को सर कैसे बोला जाए, थोड़ा सा लाउडली आवाज़ करके। ऊंचा बोलने का प्रैक्टिस, घर में 2-3 फ्रेंड को पकड़िए कि भैया 20 दिन सर टाइम मैं दो। तो वहाँ तेज़ी से बोल पाता हूँ सर, गेस्ट लेक्चर में सर पढ़ाता हूँ मैं तो मतलब बिना माइक के पढ़ा पाता हूँ, लेकिन सर थोड़ा सा यहाँ पे सीएलसी में माइक की कहाँ जरूरत पड़ती है? हाँ सर बच्चे नहीं रहते हैं। आपका भी इंटरव्यू 23 तारीख को है ना? मैं भी अभी पढ़ाया आपके हूँ। पास बहुत है टाइम। आप और जो कुर्सी होगी इतनी नज़दीक भी नहीं होगी, थोड़ा और दूर होगी। तो थोड़ा ये अपने आप को प्रिपेयर रखिए कि आपकी आवाज़ यहाँ तक पहुँच सके, उनको ये ना कहना पड़े कि प्लीज़ स्पीक लाउडली। जी सर, फिर तो नेगेटिव इंप्रेशन। हाँ, तो आप थोड़ा अपना पिच जो है स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि कुर्सी और दूर हो सकती है, ये तो नज़दीक है। सर एक सर मैं आपसे सर और क्वेश्चन जानना चाहता हूँ कि सर अगर वो लोग पूछते हैं कि अगर आप पढ़ा रहे हैं एज एकेडमिशियन तो फिर आप अगर जज क्यों बनना चाहते हैं? सर इसका बेटर आंसर मुझे मिल नहीं रहा है। कोई बेटर आंसर नहीं है। मेरा वो भी अच्छा मुझे लगता है, मुझे ये भी अच्छा लगता है। मेरा टारगेट यही था, एंड इन बिटवीन फॉर प्रिपरेशन आई वांटेड टू चेक माई सेल्फ, माई नॉलेज, एंड आई डिड दैट, दैट्स इट। दोनों ही काम अच्छे हैं। भाई आप बैठे तो नहीं है ना, कुछ कर रहे हैं ना। बुराई किसी काम की मत करना। फाइनेंशियल आप डिपेंडेंट हो, तो वहाँ भी पैसा मिल रहा है, और यहाँ पे फेम और पैसा दोनों मिलेगा बस। क्योंकि सर बहुत लोग ऐसे मतलब मेरे सीनियर पहले तो वहाँ सर पढ़ा तो सिलेक्टेड है, और बहुत लोग सर थोड़ा फेल भी हो गए थे, तो बोलते थे कि लोग आपको पता है 6th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज बीपी सिन्हा फ्रॉम बिहार। Before advocate, he taught 3 years in Patna Law College. Then he practiced law. Then he became judge in the High Court. And then he became judge in the Supreme Court. Then he became Chief Justice. ऐसे बहुत सारे वकील हैं, बहुत सारे जजेस हैं जो पहले पढ़ाते थे। टू रिफ्रेश माई नॉलेज, टू सी माई कहिए पोटेंशियल इन कि चूंकि जज मुझे बनना था, पढ़ाने से मेरी क्लैरिटी डेवलप हो रही थी। क्लैरिटी, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हुआ। It gave me confidence because children approved of my knowledge. तो मुझे और अच्छे से मैंने मेंस दिया। टीचिंग इज ए बेटर मेथड ऑफ लर्निंग। तो ये सब, और कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। मतलब आप ये मत सोचिए कि मेरे को कॉर्नर कर दिया यार। इससे पहले कौन सा एग्जाम दिया है? सर इसके पहले सर मैं बिहार का मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, और सर मैंने वहाँ मेंस लिखा था यूपी में, तो सर मेरा उस समय हो नहीं पाया था मेंस क्लियर। चलिए कोई नहीं, बढ़िया है। यहाँ पर You're आपका doing हुआ। कॉन्फिडेंटली दीजिए, आप बहुत अच्छे नंबर आएंगे आप। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।